the word this evening. आइए शाम वचन में जाएंगे। Luke chapter 5, please. कृपया निकालें सभी लोग लूका का 5वां Luke अध्याय। is in the New Testament, so open your Bibles to the book of Luke right now. और लूका जो कि नए नियम है, तो कृपया करके सभी लोग निकालेंगे सो लूका रचित सुसमाचार में। Yes, let's go there now. आइए वहां जाएंगे। It says, now so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret. और देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके पहले वचन में, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसेरेत की झील के किनारे पर खड़ा था। Here we see that people are so eager to hear the word of God from Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो इतने व्याकुल थे परमेश्वर के वचन को यीशु से सुनने के लिए। Brothers and sisters, और भाइयों बहनों, you see, the people not only followed Jesus for healing, but they wanted to hear the word of God. और हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि लोगों ने यीशु का अनुसरण केवल चंगाई पाने के लिए ही नहीं किया, मगर वो वचन को भी सुनते थे। Because you see, क्योंकि आप देखते हैं the word of God can change not only your life, but your entire generation to come in Jesus' name. Hallelujah. परमेश्वर का वचन जो है केवल आप ही के जीवन को ही नहीं, मगर आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उससे भी पूरी तरह से बदल सकती है। Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुनिए। The word, when a healing comes, it can come to you or to some individual. But the word of God has the capacity to change a city. The word of God has the capacity to change nations. आप समझ सकते हैं कि जब चंगाई आती है तो या तो फिर आप चंगे हो सकते हैं या फिर दूसरा कोई व्यक्ति चंगा हो सकता है, मगर जब परमेश्वर का वचन आता है तो उसमें सक्षमता होती है कि एक शहर को बदल सके, एक राष्ट्र को बदल सके। So here it says that the people were so eager to hear the word of God. Tell your neighbor, hear the word of God. Come on, say, tell your neighbor, you heard the word of God. अपने पड़ोसी से बोलिए कि परमेश्वर का वचन सुनो। That's why इसीलिए you must bring your Bible when you come to this service. जब आप इस सभा में आते हैं तो आपको अपनी बाइबल लाना जरूरी है। Say it after me. The people of God were so eager to hear the word of God. और परमेश्वर के लोग बड़े भावुक थे, वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। Okay. Secondly, it says, write it down, the lake of Gennesaret. Everyone say the lake of Gennesaret. This is another name for the Sea of Galilee. Please write it down. और ये दूसरा एक नाम है उस गलील के झील का। The lake of Gennesaret is the same as the Sea of Galilee. Please write it down. और कृपया ऐसे लिख लीजिए, गन्नेसेरेत की झील जो है यही है गलील की झील भी। And verse 2 now. Let's go to verse 2 now. और आइए जाएंगे अभी से दूसरे वचन में। And Jesus saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. दूसरा वचन देखें कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। I've been to places and met fishermen. Recently, some time back, I went to a place called Vengurla, and usually fishermen will wash their nets after they have finished fishing. और कुछ जगहों पर भाई गए हैं और मछुआरों से भी मिले हैं, जैसे कि बताते हैं कई कुछ समय पहले जैसे कि वेंगुर्ला में गए थे और इन्होंने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि मछुआरे जो है अपने काम पूरा करने के बाद किनारे पर आकर अपने जाल को धोते हैं। So here we see that the fishermen were washing their nets. In other words, they had gone to fish and they had come back probably. That's why they're washing their nets. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मछुआरे लोग जो कि किनारे पर अपने जाल को धो रहे थे, इसका मतलब यह है कि वो लोग मछली पकड़ने गए और फिर वापस आ गए थे अपने कामों को समाप्त करके, वो अपना जाल धो रहे थे। Now we come into our main message, so listen carefully. अब हम अपने मुख्य संदेश पर आएंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। Then Jesus, verse 3, then Jesus got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put it out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. और तीसरे वचन में देखें, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, यीशु चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। Listen now. ध्यान से सुनिए। Verse 4. And when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and lay down your nets for a catch. चौथा वचन देखें, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night. We have worked hard all night and we have caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. और शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया मगर कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Further it says, and when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. छठवें वचन में देखें, और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां पकड़ लाए और उनके जाल फटने लगे।
Peace be with you. And you, Master? Will your boat bear me, Simon? Why not? Once there were two men who went up to the temple to pray. One was a Pharisee, the other a tax collector. The Pharisee stood apart by himself and prayed, "I thank you, God, that I am not greedy or dishonest or an adulterer like everybody else. I thank you that I am not like that tax collector over there. I fast twice a week, and I give you 1/10 of all my income." But the tax collector stood at a distance and would not even raise his face to heaven, but beat upon his breast and said, "God, have pity on me, a sinner." I tell you, the tax collector, not the Pharisee, was in the right with God when he went home. For the man who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Push the boat out further to the deep water. Then you and your partners let down your nets for a catch. Oh, Master, we worked hard all night long and caught nothing. But if you say so, I'll let down the nets. James! John! Hey, John! Get your boat over and give us some help! We can't! Hurry! Hands full. We're on the far end of the net. You don't have a very good side. That's enough. That's enough. Brothers and sisters, और भाइयों और बहनों, listen now. ध्यान से सुनिए। Here we see a man called Simon Peter. और यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं जिसका नाम था शमौन पतरस। He was not a lazy man. और वो कोई आलसी व्यक्ति नहीं था। He was a hard-working man. और वो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। This man, in spite of his hard work, he was a total failure. हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने कठिन परिश्रम के बावजूद भी यह व्यक्ति बिल्कुल असफल हो गया था। Listen to me. ध्यान से सुनिए। This man, Peter, was a failure. और यह व्यक्ति पतरस जो कि असफलता था। In his failure comes Jesus now. और उसकी असफलता में अब यीशु आते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I don't know which area you have failed sitting over here. और हमें पता नहीं आप यहाँ पर जो बैठे हुए किस क्षेत्र में आप असफल हो गए हैं। Listen to me. ध्यान से सुनिए हमारी। Peter was a total failure. और पतरस जो कि पूरी तरह से असफल हो गया था। Now I don't know whether you have failed maybe in your marriage. हमें पता नहीं, हो सकता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में आप असफल हो गए हो। Maybe you have failed in your business. हो सकता है आप अपने व्यवसाय में असफल हो गए हो। Maybe you have failed in your prayer life, in your ministry, whichever area. As a student, maybe you have failed. हो सकता है कि आप अपने प्रार्थना जीवन में, अपने सेवकाई में, कोई भी क्षेत्र में, हो सकता है आप अपने विद्यार्थी के जैसे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में असफल हो गए हो। And this is exactly what was the situation of Peter. और यही तो परिस्थिति थी उस समय पतरस की। He was a total failure. और वह पूरी तरह से असफल हो गया था। How many of you agree with me? और कितने सहमत हैं? Hallelujah. हालेलुया। But there are some things that Peter did मगर कुछ ऐसा चीज था जो पतरस ने किया which made him to go from failure to success. और जिसने उसके लिए ऐसा किया कि वो असफलता से सफलता में प्रवेश कर Which जाए। made him to go from nothing to prosperity. और जिसने ऐसा कर दिया कि वो जो कुछ भी नहीं था, शून्य से वो समृद्धि में चला जाए। शून्य से, जीरो से वो हीरो बन गया। सज्जन बाजू वाले को बोला, आज तेरी बारी है, आज मेरी बारी है। अपने पड़ोसी से बोलिए कि आज तुम्हारी बारी, आज मेरी बारी है। आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, आज तेरी बारी है और मेरी भी बारी है। आज आपकी बारी, आज मेरी बारी है। हालेलुया। सर, यीशु के साथ सबका नंबर निकलता है। हालेलुया। सुने, आप यहां पर आपको कुछ सुनाने के लिए नहीं आया, आप तो बहुत सुनकर आए होंगे। आपको कहानी, प्रवचन सुनाने नहीं आया, मैं यीशु के जीवन के वचन आपको सुनाने आया। सुनिए, सुनिए, ठीक से सुनिए।
Peter go from failure to success, it's hidden in these verses now. और कैसे पतरस जो कि असफलता से सफलता में चला गया, यह जो रहस्य है इन वचनों में छिपा हुआ है. Please write this down. और कृपया करके इसे लिख There are लीजिए. some things that Peter did and I want to show it to you और right now. कुछ ऐसी चीजें जो पतरस ने की जो भाई दिखाना चाहेंगे इस समय. The first thing, पहली चीज see what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Then he got into, verse 3 says, then he got into one of the boats which was Simon. और तीसरा वचन ऐसा कहता है, उन नावों में से एक पर जो कि शमौन की थी. In other words, दूसरे शब्दों the में first thing that Peter did was he invited Jesus into his boat. सबसे पहला कार्य जो पतरस ने किया वो यह था कि उसने यीशु को अपनी नाव में आमंत्रित किया. Hallelujah. हालेलुया. It was not Jesus's boat. और यह यीशु की नाव नहीं थी, It was Simon's boat. और यह शमौन पतरस की नाव थी. Because it was Simon's और boat, क्योंकि यह शमौन पतरस की नाव थी, Jesus needed to be invited. और यीशु को जरूरत पड़ी कि उन्हें आमंत्रित किया जाए. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me now. ध्यान से सुनिए आप. When a person has failed, और जब एक व्यक्ति असफल हो गया होता है, listen, सुनिए what happens is, no, फिर क्या होता है. he is not in a mood now. वो मूड में नहीं होता. फिर People come to him and tell him, लोग आकर उसे कहेंगे चल यार मीटिंग में चल. चलो हम जाएंगे, सभा में जाएंगे. वो झिड़क देता है. फिर मीटिंग नहीं चाहिए मेरे को. झिड़कने लगता है, वो नहीं चाहिए मुझे सभा इसमें जाना. हालेलुया. अरे बाबा तेरे पास काम नहीं है, थोड़ा प्रार्थना का. प्रार्थना में तुम तेरी तो नहीं करता. When a person has failed, और जब एक व्यक्ति असफल हो गया हो, he's hurt, वो चोटिल हो जाता he's है, angry, वो गुस्सा हो जाता he है, doesn't want to listen to anything. किसी की भी सुनना नहीं चाहेगा वो. बाबा तेरा बिजनेस डूब गया है, बाइबल पढ़. तेरी तो बाइबल फेंक देगा बाइबल. चुप बोल मत देखो. How many people like that? कितने लोग हैं ऐसे. कोई लोग बहुत शाणे हाथ नहीं ऊपर उठा रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. You know, when a person experiences failure, और जब एक व्यक्ति असफलता का अनुभव कर रहा the हो, first thing he does, he stops praying. और सबसे पहला काम वो ये करता है कि प्रार्थना करना रोक देता है. Come on. So what's the use of praying? अरे, और वो कहता है प्रार्थना करने का क्या फायदा. listen to me. ध्यान से सुनिए. First thing they will do, और पहली चीज वे करेंगे, they will stop praying. वो प्रार्थना करना रोक देंगे, They will stop reading the word. और वचन पढ़ना रोक देंगे, They will stop coming for the prayer meetings. और प्रार्थना सभा में आना रोक देंगे. अरे यार, एक बार गया कुछ नहीं हो गया. डॉक्टर के पास तो 9 महीने जाता है वो. Hallelujah. हालेलुया. The first thing Peter did, और पहली चीज पतरस really very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. Listen to me. धंधे वाला होता है ना, धंधे वाला, वो धंधे के टाइम पे किसी को एंटरटेन नहीं करता है. How many of you know that? Come on, hallelujah. Even if his wife calls, he'll talk short. Okay, I'll see you. मैं आ रहा हूँ, खाना रेडी है. Bye. हाँ, talk. Come on, yes or no? But this man, मगर ये व्यक्ति, he invited Jesus into his boat. और उसने यीशु को अपनी नाव में आमंत्रित किया. What you have to do tonight और आज शाम आपको क्या करना है, is you have to invite Jesus into your areas where you have failed. आज आपको यीशु मसीह को उन क्षेत्रों में जहां पर आप असफल हो गए आमंत्रित करना है. Hallelujah. हालेलुया. Let's say you have failed, experienced failure in your marriage. मान लीजिए कि आप अपने वैवाहिक जीवन में यदि असफलता महसूस कर रहे हैं, Let's say you experienced failure in your relationship. हो सकता है कि आपने अपने संबंध, अपने रिश्तों में असफलता का अनुभव किया हो. You have to invite Jesus into that area where you have failed. और आपको यीशु मसीह को आपके उन क्षेत्रों में आमंत्रित करना होगा जहां पर आप असफल हो गए हैं. Let's say you have failed in the area of finances. और मान लीजिए कि यदि आप पैसों के क्षेत्र में असफल हो गए हैं, So you have to invite Jesus into that area where you have failed, just like Peter invited Jesus into his area of failure, that was the boat. और जैसे कि पतरस ने अपने असफलता के क्षेत्र में जो कि उसकी नाव थी उसने यीशु को आमंत्रित किया, ठीक वैसा ही जिस क्षेत्र में आप असफल हो गए हैं आपको अपने उन क्षेत्रों में यीशु को आमंत्रित करना है. How many of you understood now? और कितने लोग समझ रहे हैं अब. If you are a student, यदि आप कोई विद्यार्थी हैं then you must invite Jesus in the area of your studies. तो आपको यीशु मसीह को आमंत्रित करना है अपने शिक्षा के क्षेत्र में. How many of you are understanding? और कितने लोग समझ रहे हैं इस समय. So the first thing तो पहली चीज that Peter did जो पतरस ने किया was to invite Jesus into his area of failure. और उसने यह किया था कि यीशु मसीह को अपने असफलता के क्षेत्र में उसने आमंत्रित किया था. Now, why do you need to do that? और क्यों हमें यह करने की जरूरत है. Why should I invite Jesus into the areas of my failure? और क्यों हमें यीशु मसीह को अपने असफलताओं के क्षेत्र में आमंत्रित करने की जरूरत है. You know, that's the difference between Jesus and religion. Everyone say, that's the difference between Jesus and religion. When I say religion, it can also mean Christianity, churchianity, you know. Come on, hallelujah.
Religion. What is religion? Difference between Jesus and, you know what religion says? आप जानते हैं धर्म क्या कहता है? People of the world, you know what they say? आप जानते हैं संसार के लोग क्या कहते If हैं? you have to come to God now, यदि तुम्हें परमेश्वर के पास आना है you have to change and come to तो God. तुम्हें अपने आप को बदलकर परमेश्वर के पास आना होगा कितने लोग जान रहे हैं मैं क्या? You have to change yourself. और तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। बदली करो, बदली करो अपने को, बदली करो अपने आप को। अपने आप को बदली करो। एक काला कपड़ा उतारो, व्हाइट कपड़ा पहनो। हाँ, चप्पल उतार, चप्पल तो पहले उतार दो। बदली हो जाओ और बाद में परमेश्वर के पास आओ। Question. प्रश्न, If I have the power to change myself, then why do I need a God? और यदि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपने आप को बदल सकूं तो मुझे परमेश्वर की फिर क्या जरूरत है? If I have the power to change myself, to change my situation, to change my life, then why do I need God? I only am God then. और यदि मेरे पास ताकत है कि मैं अपने आप को बदल सकूं, अपनी समस्याओं को बदल सकूं, अपनी परिस्थितियों को बदल सकूं, तो मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है? मैं खुद ही एक परमेश्वर बन चुका हूं। When I invite Jesus into the areas of my failure, I receive grace in those areas and I become changed from glory to glory for His glory. Somebody say hallelujah. जैसे कि आमद के यीशु मसीह के क्षेत्र में तो जैसे कि बदलते चले गए महिमा से महिमा तक और इन्होंने अनुग्रह पाया। But you need humility in this area. मगर इन क्षेत्रों में आपको दीनता की You जरूरत है। must say, Lord, yes, I need. Some people are too proud to invite Jesus. Well, I can handle it. I can handle it. No, friend. और कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं यीशु को आमंत्रित करने के लिए, वो कहते हैं नहीं मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं Don't नहीं worry, कर सकता हूं। don't worry, don't तुम worry. फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत बिल्कुल मत करो। अरे शाणे, मुंह के बल तो रोज गिरता है, बोलता है I can handle it. No, you can't. नहीं, तुम निपट नहीं सकते। That's why you need to invite Jesus into the areas of your failure, and now you will, when you do that, you will receive grace. You will leave, what is grace? Supernatural power in that particular area so that you can become an overcomer. और जब आप यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं अपने उन क्षेत्रों में जहां पर असफल हो गए हैं, तो आप अपने अलौकिक सामर्थ्य को पाते हैं उन विशेष क्षेत्रों के लिए और आप उन पर जयवंत हो सकते हैं। You see Zacchaeus. आप देखते हैं जक्कई को। Zacchaeus was a rich man. जक्कई जो कि एक धनी व्यक्ति था, And being a rich man, और एक धनी व्यक्ति होने के नाते maybe his sons were not, godly or somebody, हो सकता है कि उनके बेटे जो एकदम भक्तिमय जैसे न रहे हो। Maybe his wife was, like going in the malls. Hello, hi, Susie, let's go for the shopping. और जैसे हो सकता है कि उनकी पत्नी भी जैसे कि कोई श्रद्धालु स्त्री नहीं रही होगी। Come on, is anybody listening over here? But this one man, Zacchaeus, मगर यह एक व्यक्ति जक्कई, he had a desire to see Jesus. और उसके अंदर एक ऐसी लालसा थी यीशु को देखने की। And the very fact that he invited Jesus into his area of failure, that was his house. Because you see, even he was a chief tax collector, he was a thief. The Bible says he was not a good person. That was his area of failure. He knew that he had not handled his house very well. So what did he do? He invited Jesus in his house. He invited Jesus in his family. And that day Jesus said, because you invited me in your family, today salvation has come to this house. और जैसे कि देखते हैं जक्कई भी जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वो जानता था कि उसने अपने परिवार को सही प्रकार से संभाला नहीं है, तो उसने अपने असफलता के क्षेत्र में जो कि उसका घर था, उसने यीशु मसीह को आमंत्रित किया। फिर यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। Dear sister, मेरी प्रिय बहन, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, today आज I believe God will save your children. God will save your spouses. Something God will do tonight in your life which He has not done for years to come. और आज विश्वास करते कि परमेश्वर आपके बच्चों को बचाएगा, आपके संगियों को बचाएगा। परमेश्वर आज आपके लिए कुछ ऐसा काम करेगा जो अभी तक उसने आपके लिए नहीं किया। इस पे विश्वास करें। That's what the turning point in Peter's life. This was the turning point. Everybody has a turning point in their life, and this was the turning point in Peter's life. और देखते हर एक व्यक्ति के जीवन में एक निर्णायक मोड़ होता है, और यही निर्णायक मोड़ पतरस के जीवन में तब था। So the first thing that Peter did was, तो पहली चीज जो पतरस ने किया, he invited Jesus into his life. और उसने यीशु को आमंत्रित किया अपने जीवन में। Ephesians chapter 2 verse 8. और इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय 8वां वचन। For by grace you have been saved through faith. और क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, And not of yourselves. और ये तुम्हारे कारण नहीं, It is the gift of God. और ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। When you invite Jesus into your life, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो my brother, भाई, you receive grace. तो फिर आप उद्धार पाओगे। कुछ नहीं करना है, 5000 सीढ़ी नहीं चढ़ना है, कपड़े नहीं बदले करने हैं, सर नहीं मुंडवाना है, कुछ नहीं खाना है। बोले मैं अभी ना ये नहीं, मच्छी नहीं खाता हूं, मैं ना तीखा नहीं खाता हूं, मीठा नहीं खाता हूं। जो खाना है खाओ, आपकी जितनी ताकत है उसे खाओ।
जो खाना है खाओ, लेकिन जो है यीशु मसीह को पूरे अपने दिल से बुलाओ, बस इतना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु में आया तो मैं तीखा नहीं खाना चाहिए, यीशु में आया तो मीठा नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाओ, पानी पूरी खाओ, रगड़ा पैटिस खाओ, लेकिन पेट खराब मत करो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कुछ भी परे नहीं है। There are no conditions. और ऐसी कुछ शर्त नहीं है, कुछ भी condition, there are no conditions. और कुछ भी ऐसी शर्त नहीं है। Come on, somebody shout hallelujah. When you invite Jesus into your heart, He forgives your sin. और जब आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो आपके पापों को क्षमा कर देता Please है। listen very ध्यान से carefully. सुनिए समय। Please listen carefully. ध्यान से सुनिए। This is what happened to Peter. और यही हुआ था पतरस के साथ। I want to show you right now. और दिखाना चाहेंगे इस समय। Go with me to the book of Psalm 103. और कृपया निकाले इसमें भजन संहिता का अध्याय 103 में। What will happen? What exactly happened when Peter invited Jesus? और क्या हुआ, दरअसल क्या हुआ था जब पतरस ने यीशु को आमंत्रित किया तब? Something started working in Peter's heart. और कुछ तो ये जैसे कि पतरस के दिल में काम करने लग गया। Hallelujah. हालेलुया। Come on. Psalm 103 verse 12. और भजन संहिता का अध्याय 103 उसका 12वां I want you वचन। to open that word now. और चाहते हैं कि आप इस वचन को निकालें इस See समय। what it says. देखिए वचन क्या I want कहता to है। show you something over there. और कुछ दिखाना चाहेंगे यहाँ चलो पर। बाइबल खोलो, सभी लोग खोलो. Open. Psalm 103 और भजन संहिता का अध्याय 103 verse 12. उसका 12वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। As far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us. 12वां वचन देखिए इस समय। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, just because you have failed, that does not mean God is angry at you. और क्योंकि आप असफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आप पर गुस्सा है। Peter had failed, और पतरस असफल हो गया था, but God was not saying, you fool, you failed, I'll teach you a lesson, go to hell. मगर परमेश्वर ने उससे नहीं कहा तुम मूर्ख, तुम असफल हो गए, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम नरक में जाओ। No, नहीं, our God हमारा परमेश्वर is the God of the second chance. और ये दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। Somebody say कोई hallelujah. कहेगा हालेलुया। And what do you mean by second chance? और ये दूसरा अवसर देने का मतलब क्या है? That whenever you fail, कि जब कभी आप असफल होते He हैं will say one more और time. आपको और फिर अवसर दे सकता He है, will give you another opportunity. और वो आपको और एक अवसर देगा, Another opportunity. फिर और एक अवसर। Turn to your neighbor and say, God is the God of the second chance. अपने पड़ोसी को छूकर कहे से परमेश्वर दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। Third chance. और तीसरा अवसर, Fourth chance. चौथा अवसर, He will keep on giving you chances. वो आपको अवसरों पर अवसर देता रहेगा। Come on, somebody, और hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया। If you turn to Jesus यदि आप यीशु की ओर मुड़े and if you say, Lord, और आप कहेंगे प्रभु I messed up, Lord. और मैंने गड़बड़ कर दिया प्रभु, Oh, Father, forgive me. I slapped my wife. I beat her up. I threw this and Lord, please, Lord, I'm such a rascal. Please forgive me, और Lord. पिता मुझे क्षमा कर दो, बहुत ही मैं मूर्ख बेवकूफ हूँ प्रभु, मैंने अपनी पत्नी को मारा, मैंने गुस्सा हो गया, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया, मुझे क्षमा कर दो। And you know what God will say? आप जानते हैं परमेश्वर क्या कहेगा? I forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता I हूँ, forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, Come back. वापस आ जाओ। Come on, hallelujah. कहे हालेलुया। I said hallelujah. Hallelujah. God is a God of the second chance. परमेश्वर दूसरा अवसर देना परमेश्वर है। Don't have to commit suicide. और आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, Don't have to leave. आपको निकलने की जरूरत नहीं, Come to Jesus. बस यीशु के पास आओ। Come on, hallelujah. कहे हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। When you come to Jesus, He will forgive you. जब आप यीशु के पास आते हैं, वो आपको क्षमा करेगा। That's what the Bible says. इसलिए बाइबल कहती है, He says, as far as the east is from the west. और ऐसा कहता है कि जितना पूरब जितना पश्चिम से दूर है, Everyone say east. जोर से बोलो यार. West. As far as the east is from the west. और देखते हैं जितने पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, He said, I have put your sin away. और वो कहता है कि तुम्हारे पाप को उतना ही दूर मैंने कर दिया है। Question. प्रश्न, I asked the Lord a question. प्रभु ने से पूछा उन्होंने, I said, Lord, प्रभु why east and west? क्यों पूरब और पश्चिम, Why north and not south? और क्यों उत्तर और दक्षिण नहीं? अरे कुछ तो बोलो यार. Question. प्रश्न, Lord, why east and west? और क्यों प्रभु पूरब और पश्चिम है, Why not north and south? और उत्तर और दक्षिण क्यों नहीं? Why didn't you write like this? As far as the north is from the south, और ऐसा क्यों नहीं आपने कहा कि उत्तर से दक्षिण जितना दूर है, I put away your sin. और तुम्हारे पापा को इतना दूर मैंने कर दिया है? How many of you have that question? कितनों के पास ये प्रश्न है? Some people have no questions only. कुछ लोगों के पास कोई प्रश्न ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया। See, देखो, geography tells us और जैसे कि भूगोल बताता है, there is a north pole उत्तरी गोलार्ध है and there is a south pole. और दक्षिणी गोलार्ध भी है। Means you go walking, अब जब चलते चलते जाएं you will come to the end of the north. और दक्षिण के अंत तक आप पहुंच जाएंगे, There is something called north pole. और वो कहलाता है ऐसा कुछ दक्षिणी गोलार्ध। So the Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने कहा, if I put your sin from the north pole to the south pole, somebody can find it. और यदि तुम्हारे पापों को यदि मैं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के वहां पर रख दूं, कोई ना कोई तो ढूंढ लेगा उसे। Hallelujah. हालेलुया। But मगर if I put your sin
as far as the east is from there is no east pole and there is no west pole. Hallelujah. यदि मैं तुम्हारे पापों को पूरब से पश्चिम तक वहां पर इतना दूर रख दूं तो ऐसा कोई यहाँ पर गोलार्ध नहीं है. Hallelujah. बाजू वाले को बोलो ढूंढते रह जाओगे. Hallelujah. No east pole, no west pole. There is only north pole, south pole. God says, I will, as far as the east is from the west, I put your sin away. और परमेश्वर कहता है पूरब से पश्चिम जितनी दूर है तुम्हारे अपराध और तुम्हारे पापों को मैंने उतना ही दूर कर दिया है. That's what happens when you come to God. और यही होता है जब आप परमेश्वर के पास आते हो. My friends, मेरे दोस्तों, today if you can come to God, यदि आज आप परमेश्वर के पास आए and if you can say, Lord, और यदि आप ऐसा कहें कि प्रभु, not with style but with humility, और ऐसी कोई शैली के अनुसार नहीं मगर नम्रता से, you break your heart open and cry out with tears and you say, oh God, I have sinned against you. Please have mercy on me. And let me tell you one thing, that God will forgive you. God will forgive you. He's the God of the second chance. Give the Lord a big shout of praise and say hallelujah. और यदि अपने दिल को फाड़ कर उससे कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे खिलाफ में पाप किया है, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा क्योंकि वो दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है. Come on, is anybody understanding over here? और क्या कोई समझ रहा है यहाँ पर? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. The first thing that Peter did so that he could go from failure to success was he truly invited Jesus into his boat. And you need to do that, brothers and sisters. और पहली चीज जो पतरस ने किया, उसने सच्चाई से खराई से प्रभु यीशु मसीह को अपने नाव में आमंत्रित किया, और यही तो आपको भी करना है. How many of you learning something? और आप में से कितने लोग कुछ सीख रहे हैं यहाँ? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. The second thing, दूसरी चीज write it down. लिख लीजिए इसे. You know, the Peter पतरस, that went in the night और जब रात के समय वो गया था, and the Peter that went in the morning, और जो पतरस सुबह वापस लौट आया, there was a difference in between those two Peters. उन दो पतरसों में अंतर था. What are you talking, brother? और भाई क्या बोल If रहे you हो? read Luke chapter 5, यदि आप पढ़ेंगे लूका का 5वां अध्याय, it tells us वचन कहता है that the fishermen had already gone to fish. और मछुआरे पहले ही मछली पकड़ने चले गए थे. Peter told Jesus, और पतरस ने यीशु से कहा, whole night I was fishing. सारी रात हमने मछली पकड़ने का काम किया. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? And I did not get anything. और मुझे कुछ भी नहीं मिला. That means इसका मतलब Peter had gone in the night. और पतरस जो कि नाव में मछली पकड़ने गया Come था. on, yes or no? हाँ या नहीं? And now और अब Jesus comes into his boat, we know that. और हम जानते हैं कि यीशु उसकी नाव में आते And हैं, he said, boss, now let's go again now. और वो कहते हैं कि आओ फिर हम जाएंगे. Come on, praise the Lord. Two Peters. दो पतरस, One that went in the night और एक जो रात में गया था, and one that went in the morning. और दूसरा जो कि सुबह गया. Said everyone. एक रात में गया और एक सुबह गया. Same Peter, वही पतरस, but something was different. मगर कुछ तो अलग था. सब जन बोलो वही पीटर है. बाजू लोग हाथ लगाकर बोल, वही पीटर है. Hallelujah. Same Peter. वही पतरस. Something had changed into Peter's life. और कुछ तो पतरस के जीवन में बदल गया था. I'll tell you. बताएंगे. The Peter that went in the night और वो पतरस जो रात में गया था, was empty Peter. और वो खाली पतरस था. But the Peter that went in the morning, मगर वह पतरस जो सुबह गया, he was a filled Peter. और वो भरा हुआ पतरस था. Hallelujah. कहे हालेलुया. So what do you mean, Brother Michael? और भाई माइकल, आपके बोलने का मतलब क्या है? The Peter that went in the morning, और वह पतरस जो सुबह गया था, Jesus had sat in his boat. और यीशु बैठे हुए थे उसकी नाव में, Jesus was preaching the word. और यीशु वहां पर वचन प्रचार कर रहे थे. He had heard the word. उसने वचन सुना था, He was filled with the और word. वो वचन से भर गया था. Somebody shout वो hallelujah. चिल्लाएगा हालेलुया. The Peter that went in the morning, और वह पतरस जो रात में गया था, the Peter that went in the morning, वो पतरस जो सुबह गया था, he was not empty Peter. और वो खाली पतरस नहीं था, He was भरा हुआ Peter. वो भरा हुआ पतरस था. बाजू वाले को बोल, वो खाली बर्तन नहीं था, वो भरा हुआ बर्तन था. परमेश्वर के वचन से वो भरा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह उसकी नाव में बैठकर लोगों को प्रचार कर रहा था, और परमेश्वर के वचन को वो सुनकर पूरी तरीके से भर गया. How many of you receiving this word? और कितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं इस The समय? Peter that went in the night, और वो पतरस जो रात में गया था, Peter that went in the morning. और जो सुबह गया था पतरस, Two things had happened in his life. और दो चीजें हुई थी उसके जीवन में. He was filled with the word of God, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, and he was filled with the presence of Jesus. और यीशु की उपस्थिति से भी वो भरा हुआ था. Come on, somebody. Hallelujah. हालेलुया. In other words, दूसरे शब्दों में I'll tell you, कहेंगे आपसे, many people today, अनेकों लोग आज, they have lost their magnetism. और उन्होंने अपनी चुंबकीय शक्ति को बिल्कुल खो दिया है. You know what is magnetism? आप जानते हैं चुंबकीय शक्ति क्या है? Take a magnet यदि आप चुंबक लें, and you put it in iron. यदि आप लोहे पर उसे रखें, All the iron runs after the magnet. और सारे जो लोह धातु होते हैं उस चुंबक की तरफ आकर्षित होते दौड़ते हैं. How many of you seen a magnet? और कितने लोगों ने देखा चुंबक को? If you've not seen, go and see, okay? यदि आपने नहीं देखा, जाकर देखो. Everybody has seen. हम लोग जब छोटे थे ना, क्या क्या करते थे मैग्नेट से ना?
Come on, you all have done that natak. Come on, yes or no? सभी ने किया है। You know, वो कैप्सूल में डालेगा, ऐसा कुछ करेगा, क्या क्या करते थे हम लोग, किया कि नहीं? Yes, okay. And we used to get impressed. अरे क्या पेपर के नीचे घुमाएगा, ऐसा करेगा, है ना? आपने भी किया रवि? अच्छा, मैंने तो किया है भाई, बहुत नाटक किया, घर का फ्यूज उड़ा दिया, क्या क्या उड़ा दिया। A magnet एक चुंबक has the power उसमें सामर्थ्य होती है attract. कि वो आकर्षित करे, The magnet will just stand. और चुंबक बिल्कुल खड़ा रहेगा Everything tuck tuck tuck, it will get और attracted. सब कुछ उसकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। Now question: अब प्रश्न, if the magnet loses its magnetism, और यदि एक चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति को खो दे, then the magnet has to run after the things. तो फिर जरूरी पड़ेगा कि चुंबक दूसरी चीजों के पीछे दौड़ता रहे। But if the magnet is magnetized, मगर यदि चुंबक में चुंबकीय शक्ति हो, the iron will come tuck. तो लोहा आके चिपक जाएगा, चिपकते चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The Peter that went in the night, और वो पत्थर जो रात में गया था, all the fish were running away from his net. और सारी मछलियां उसके जाल से दूर भाग रही He would थी, throw the net, और वो जाल फेंकता, and the Doma and the Bangda would say, "Bhag rahe!" और ढोमा और बांगड़ा एक दूसरे से बोलते थे, भागो यहां से। Come on, I am talking. क्या किसी से बोल रहे हैं यहाँ पर? Hallelujah. हालेलुया। Yes or no? हाँ या नहीं? He said, okay, maybe this side does not work. So let me use this Chinese MBA net, you know. ठीक So है, he ठीक है। put it, and all the mackerels said, run! और दूसरे सारे जो थी वहां से भाग गई। So बोले, मिलता ही नहीं कुछ यार. Hallelujah. हालेलुया। I said, hallelujah. But the Peter that went in the morning, मगर वो पत्थर जो सुबह गया, same boat, वही नाव, same Peter, वही पतरस, same net, वही जाल, same lake. और वही उस झील में। Hey, it was not a sea, it was a lake. और वो कोई समुद्र नहीं था, वो झील था। किधर जाएगा रे मच्छी? Hallelujah. ठीक है, सी रहता तो बोल सकता है बाबा दुबई से इंडिया आया मच्छी, बोले अभी दुबई में मच्छी नहीं। लेक, I've been to Israel, it's a lake. और भाई गए थे इस्राएल में, ये तो झील थी, And he's putting the net over there. और वहां पर वो अपनी जाल डालता है। In the night everyone say Peter had lost his magnetism. So throw the net, everybody's. और पतरस ने रात के समय जैसे चुंबकीय शक्ति को अपने खो दिया था, हर बार वो जाल डालता, But इसलिए in भाग जाते थे the उससे। morning, मगर सुबह Peter was magnetized. और पतरस पूरी से He चुंबकीय was शक्ति से भर गया, magnetized with the word. और वचन के द्वारा उस चुंबकीय शक्ति से भर गया, He was magnetized with the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा चुंबकीय शक्ति से भर गया, He threw the net. और उसने अपना जाल फेंका। He told, कुछ नहीं होने वाला है. He threw the net. उसने अपना जाल डाला। All the Bangda, Karli, Tarli, Marli, everyone. Hey, चल रहे पीटर के नेट में चल, घुस. Come on, hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। There are many businessmen sitting over और here. अनेकों व्यवसायी यहाँ बैठे हैं। How much papad you just think? और कितने आप पापड़ बेलते हैं? Sir, 60 day credit चलेगा, 90 day देना है तो दो, लेकिन business लो, कुछ तो लो, कुछ तो। कितना मस्का मारता है, कितना मस्का मारता है, एक भी business नहीं मिलता है. Application. Sir, I wish to apply for the post of this. I wish to. Forget, get out. Sir, keep it in case you need me. So much. Sir, I'm MBA. तेरे जैसे 10 लोग हैं MBA. रख इधर. किलो के से सर्टिफिकेट पढ़ाए देख MBA का. I'm telling you. आपसे कहते हैं, People are trying their strength. और लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके देखते They हैं, try everything. सब कुछ करके देख लेते बोले हैं, okay, nowadays MBA is useless, so let me do super MBA. और कहते हैं MBA जो इन दिनों में बिल्कुल बेकार हो गया है, Singapore. तो इससे कुछ बड़ा हम करेंगे। Something heavy. MBA from where? London. MBA लंदन से आए अभी हैं, दुनिया के बाहर तो नहीं जा सकते, तो पब्लिक अभी डबल MBA कर रही है. MBA in finance, MBA in marketing, MBA in fishing, MBA in whatever. Come on. And in nowadays parents are tough time. Now they don't know what to do because somebody is telling them this, somebody is telling them that. ठीक है, तू ये भी कर, तू वो भी कर. And after doing that, और वो करने के बाद still no job. फिर भी कोई नौकरी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। मुझे छेड़ो पोस्ट ग्रेजुएट डबल MBA असा छेड़ो मेळना किचे छेडे सगळे दावी फेल असतात.
balance. No. Hallelujah. क्या करने का? क्या करने का? Touch your neighbor and say, get magnetized. अपने पड़ोसी को छूकर कहें चुंबकीय Touch शक्ति पा 3 लीजिए। people and say, get magnetized. 3 लोगों को छूकर कहें चुंबकीय शक्ति को पा लीजिए। जोर से बोल, get magnetized. जोर से बोलिए इस समय। David was magnetized. और दाऊद भी चुंबकीय शक्ति से भर गया था। Listen to me. ध्यान से सुनिए। What do you mean by getting magnetized? Let me explain to you. Go to Psalm 23. और निकालेंगे इस समय भजन संहिता का अध्याय 23। See, go to Psalm 23. निकाले भजन संहिता का अध्याय See what 23। David said. देखिए दाऊद ने क्या कहा। Are you there? क्या वहां है? In David, in Psalm 23 verse 6, he said, surely, not maybe. Everyone say surely. जोर से बोलो surely. Not surely, surely. Okay. Some boys are saying surely. Okay. Say it loudly. Surely, goodness and mercy shall follow me. Or Ravi, follow me. Follow me wherever I go. All the days of my life. See, surely is following me now. Goodness is following me. देखिए भलाई पीछा कर रही है। Mercy is following. Mercy is maybe your wife, future wife. Praise the Lord. Say it after me. Sure. No, you're laughing at me. But that's what David said. और यही तो दाऊद ने Surely. कहा। Everyone says surely. Yakinan. Hallelujah. हालेलुया। Listen, I don't know whether you read the word. It did not say, हो सकता है कि surely goodness, mercy मेरे पीछे आए. कभी हो सकता है, कभी संडे को anointing ज्यादा रहेगा तो हो सकता है, कभी कभी प्रभु का मूड चले. No! Surely! निश्चय। Touch your neighbor with attitude and say, surely! अपने पड़ोसी को रवैये के साथ छूकर कहें यकीनन। Hallelujah. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. यकीनन भलाई और करुणा मेरे जीवन के हर एक दिन मेरे पीछे चलेंगी। And I will dwell in the house, after that he said, and I will dwell in the house of the Lord forever. Brothers and sisters, David did not run after the blessings followed David. और देखते हैं कि दाऊद आशीषों के पीछे नहीं भागा मगर आशीषें खुद उसके पीछे पीछे चलती आई। Brother, can this happen today? और भाई क्या आज हो सकता है ये? Yes, my sister, it can happen today, it can happen now. जी हाँ मेरी बहन, आज ये हो सकता है, अभी भी ये हो सकता है। Somebody say कोई hallelujah. कहेगा हालेलुया। Listen to me. हमारी सुने, Listen. सुने। How to get magnetized? और कैसे चुंबकीय शक्ति को पाते The हैं? good news is और अच्छी खबर यह है that you can be remagnetized. कि आपको फिर से आप चुंबकीय शक्ति को पा सकते See, there हैं। are many girls, there are many boys today. They are running here and there. और देखते हैं आज अनेक लड़के लड़कियां हैं जो यहाँ वापस भागते रहते They हैं use their mental strength. और जैसे कि अपने दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करते They हैं try to use their beauty. They try to use their talk. और अपने सुंदरता को अपने बात करने की शैली का बस इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। क्या नहीं करता है? Just to get the job done. बस अपना काम पूरा करने के लिए। One sister wrote to me, और एक बहन ने लिखा, Brother Michael, भाई माइकल, I had curly hair. और मेरे बाल घुंघराले हैं। So somebody told, put straight hair, you'll get the job. तो किसी ने मुझसे कहा कि अपने बालों को सीधे करवा लो तुम्हारा काम हो जाएगा। So every day I iron my hair. You're laughing? People are doing that. आप हंस रहे हैं, लोग ऐसा सब करते You know, हैं। some people say, if only you reduce 2 kilos, now maybe you'll get a proposal. And so then what all they are doing? Somebody doing green tea, pink tea. कोई कहता है यदि तुम अपने वजन को थोड़ा 2 किलो कम कर लो ना तो तुम्हें प्रस्ताव मिल जाएगा। तो क्या क्या करते हैं लोग? Green tea, pink tea, and they become red then. बाजू के बोल, लोग कितना हाथ पैर मारते हैं. But how to get magnetized? मगर कैसे चुंबकीय शक्ति को पाते हैं? Every day, प्रतिदिन sit at the feet of Jesus, meditating upon the word of God. प्रतिदिन आपको यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन का मनन करना है। Please listen to me. और कृपया ध्यान से सुनिए भाई को। Every day, हर दिन sit at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में बैठो, Get filled with His presence. उसकी उपस्थिति से भर जाओ। That's how you get magnetized. इसी प्रकार से आप उस चुंबकीय शक्ति को पा सकते There are हैं। many preachers. ऐसे अनेकों प्रचारक There are हैं, many of you leaders sitting over here. ऐसे अनेकों अगुवे जो यहाँ बैठे हैं इस You समय, are saying, I don't have the anointing. और आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पास अभिषेक नहीं। Why? क्यों? Because you never take the time to study God's word. क्योंकि आप कभी समय नहीं निकालते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन करें। Today, please don't feel bad. कृपया बुरा ना माने। Don't feel bad. बिल्कुल बुरा ना This माने। is a rebuke from the Lord.
maybe, and you listen to me, मैं सुनेगी आप, you can sit at the feet of Jesus, develop that relationship with God and say, oh God, I cannot do it in my strength, I need your strength. यीशु के चरणों में बैठो, परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है उसे विकसित करो और उससे कहो कि प्रभु मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता यह सब कुछ, मुझे तेरी मदद The चाहिए। Bible says, बाइबल कहती है, they that wait upon the Lord और जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं shall renew their strength. वे अपने ताकत को नया करते जाएंगे। They that wait upon the और Lord. वे लोग जो प्रभु की बात जोते Oh, हैं, somebody say, they that wait upon the और Lord, कोई तो कहेगा जो प्रभु की बात जोते हैं they shall renew their strength. वे अपनी ताकत को नया करेंगे। My friends, मेरे दोस्तों, it's not your physical strength, और ये आपकी शारीरिक ताकत नहीं, it's your spiritual strength. और यह है आपकी आत्मिक ताकत। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाएगा हालेलुया। I tell you, listen to this message, it's from God. और कहना चाहते हैं कि इस संदेश को सुने जो कि परमेश्वर से है, People will be attracted towards you. और लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। Like a moth is attracted to fire, people will be attracted towards you. और जैसे लोग जैसे आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। I learned this secret. और इस बात को भाई ने सीखा है। और कितना भी कुछ भी कर, कुछ भी कर, लोग तुम्हारा चेहरा नहीं देखते हैं, लोग तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते हैं, अगर तेरे पास यीशु है तो दुनिया तेरे पास दौड़ के आएगी। Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Look at the hall now. हॉल की ओर देखिए, अभी हॉल में देखें। That's why I don't meet people. Of course, I love to meet people. Listen to me. I'm not like that. I love to meet people. और लोगों को उससे मिलना भाई को पसंद है। I love to sit with people, have fun with और people. लोगों के साथ बैठ के आनंद उठाना सब पसंद करते Many हैं। pastors call me proud और अनेकों पासबान जैसे कि भाई को घमंडी कहते हैं, because I don't meet people. क्योंकि लोगों से मिलते नहीं। But the reason is, मगर कारण ये I है, have a choice. इनके पास चुनाव है, Either to meet people या तो लोगों से मिले or to meet the God of the people. या फिर Hallelujah. लोगों के परमेश्वर से मिले। Hallelujah. Hallelujah. But when I meet the God of the people, मगर जब लोगों के परमेश्वर से मिलते हैं I can be a blessing to the people. तो लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं। Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया। People say, brother, why don't you come to my house? तो लोग ऐसा पूछते हैं, भाई आप मेरे घर में क्यों नहीं आते? Why don't you sit? और क्यों नहीं आप बैठते? Because I have to pray. क्योंकि प्रार्थना इन्हें करना है। Are you following me or not? समझ रहे हैं सब? And if you can sit at the feet of God, my sister, you may be a beautiful lady. If you can sit at the feet of God, my handsome brother, I tell you, God will bring your partner to you in Jesus' name. आप जो सुनकर एक महिला है और आप जो एक सुंदर से रूपवान भाई वो हैं, बिजनेस, वो मच्छी जो तुमको लात मार कर गई थी, वो तुम्हारे पैर को चूम के वापस आएगी। Receive this word of the man of God. Receive it. और भाई Receive it. नहीं जो कह रहे उसे ग्रहण करें समय। Hallelujah. Hallelujah. I said देखा hallelujah. हालेलुया। I want to encourage you. और आपको उत्साहित करना चाहते You हैं। know, I was a rascal. और जैसे कि भाई बिल्कुल एकदम बेकार थे। बेकार थे मैं। मेरी माँ ना सर पे दीवार पे ऐसा सर पटकती थी। She used to cry. रोया करती थी But वो। one thing she used to do. मगर एक चीज वो किया She करती used थी to sit at the feet of God. और परमेश्वर के चरणों में बैठती थी। I'm telling you. आपसे कहते हैं, I came to the Lord. फिर भाई प्रभु में आ गए। Not only I came to the Lord, प्रभु में केवल आई नहीं, God uses me in a powerful way. You know that. मगर परमेश्वर जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर भाई को इस्तेमाल भी करता है समझदारी रीति से। Listen to me. हमारी सुने, You need to do that. और आपको करने की जरूरत You है। need to do that. आपको ये करने की जरूरत है। Get magnetized. और चुंबकीय शक्ति पा लीजिए। Martha and Mary. मार्था और मरियम, Two sisters. दो बहनें। Martha. Doing lot of work. बहुत सारा काम कर रही Cutting थी the vegetables. और तरकारियों काट रही थी Arranging the table. और मेज को प्रबंध कर रही थी। Everything she is doing. सब कुछ वो करती थी वहां। And she came to Jesus. और फिर यीशु के पास आई। Jesus. यीशु, क्या है इस? मैं इतना काम कर रही हूं। ये बोले मार्था। मार्था, किसी का नाम माता है क्या यहाँ पर? वर्ड ऑफ नॉलेज। मार्था। मार्था, 2 बार यीशु ने बोला, क्योंकि मार्था सुनती नहीं है, काम में व्यस्त है ना। टेल योर नेबर से मार्था। अपने पड़ोसी को मुड़कर क्या मार्था? मार्था। मार्था, One thing is needed, Martha. एक चीज की जरूरत है And Mary is doing the right part. और मरियम वो सही चीज कर रही है। Sit at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में बैठी हुई है। सर, श्रीमान, सर, श्रीमान, कितना दौड़ोगे तुम? कितना भागोगे? कितना दौड़ोगे? Give that time to Jesus. और समय यीशु को दो। Give that time to Jesus. यीशु को समय दो। And I'll tell you, और आपसे कहते हैं, you know what is the greatest thing you can give God? आप जानते हैं क्या चीज है जो परमेश्वर आप दे सकते हैं? महान चीज Your time. आपका समय। Hallelujah. हालेलुया। The greatest thing, एक बड़ी महान the चीज costliest thing जो कि कीमती चीज है you can give God जो परमेश्वर आप दे सकते हैं is your time. वो है आपका समय। And when you give God your time, और जब आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं, surely goodness and mercy shall follow here. यकीनन भलाई और करुणा आपके पीछे हो लेंगी। सर, करके देखो, ये हफ्ता करके देखो और देखो, वो मच्छी में बोला ना आपको, जो लात मार के गई थी आपको, वो तुम्हारे पैर चूम के वापस आएगी। लिख
के रखो तुम्हारे दरवाजे पर, मच्छी आ रही है। सच्ची। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Say it loudly. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। These are the two things that Peter did so that he could go from failure to success. और ये वो दो चीजें जिसे पतरस ने किया ताकि वो असफलता से सफलता में I जाए। just want to say one thing and before I close. और समाप्त करने से पहले और एक चीज कहना चाहेंगे। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Their nets were breaking. उनके नाव जैसे कि जाल फटने लगे, Nets were breaking. कि जाले फटने लगी। As Peter sat at the feet of Jesus, और जैसे पतरस बैठा हुआ था यीशु के चरणों में, Peter got filled with the Spirit. और पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, His boat was filled with fish. और उसकी नाव जो कि मछलियों से भर गई। J12, please stand up and come here in front. So what Peter did, फिर पतरस ने क्या किया? see what he did. देखिए वचन क्या कहता है। Verse 7. 7वां वचन। Only FBM J12, please. So they signaled to their partners in the other boat. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, And he said, और उसने कहा, partners, साथियों come. आओ, My boat is sinking. और मेरी नाव डूब रही है, Take some of the fish. और कुछ मछलियां ले लो। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. कहा हालेलुया। Now, as I'm sitting in the presence of God, जैसे भाई बैठ प्रभु की उपस्थिति में, it becomes difficult for me to handle the people. और ये कठिन होता है भाई के लिए कि लोगों को संभालें। As I seek the Lord, और जैसे भाई प्रभु की खोज करते हैं, many people come for the meeting. अनेक लोग सभा में आते Now, हैं, I cannot meet everyone individually. और हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से भाई नहीं मिल सकते हैं। And many people they have some simple question. Bible कैसा पढ़ने का? और कुछ लोग साधारण से प्रश्न हो सकते हैं कि बाइबल कैसा पढ़ना है, मेरा पति दूसरे के साथ घूमता है, क्या करने का? मेरा पति दूसरे के साथ घूमता है, तो क्या करना है मुझे? There are examples. ऐसे उदाहरण हैं। So what Peter did was, तो पतरस ने क्या किया? he had partners. उसके पास साथी थे उसके। Everyone say he had partners. Come on, tell your neighbor he had partners. So what he did तो was, उसने क्या किया? he said, my उसने कहा, boat is not fit enough to keep all the fish. और मेरी नाव जो है इतने काफी नहीं है कि ये सारी मछलियों को संभाल सके। So what he did was, तो उसने क्या किया? Peter, one other thing, brothers and sisters, said after me, many people सभी लोग कहें, can handle their failures, but very few people can handle their success. अनेकों लोग अपनी असफलता को तो संभाल सकते हैं, मगर बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी सफलता को संभाल सकें। सब जन बोलिए, बहुत सारे लोग अपनी असफलता में या असफलता को झेल सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी सफलता को वो संभाल नहीं पाते हैं। Success goes to their head. और सफलता जो कि सिर पे जैसे हावी हो जाती They है, become proud. वो घमंडी हो जाते They हैं, become proud. बहुत ही घमंडी हो जाते हैं, Nobody can talk to them now. और अब कोई उनसे बात नहीं कर सकता। अभी वो जमीन से ऊपर चल रहे हैं। बोले इसको क्या हो गया? ये तो हम लोग के साथ घूमता था गली में, इसको क्या हो गया? नहीं यार, इसको थोड़ा सक्सेस आ गया, बहुत बात ही नहीं करता, नाक हमेशा ऊपर ही रहती है उसकी। Have you seen such people? और क्या आपने देखा ऐसे लोगों को? Have you seen such people? क्या आपने देखा ऐसे लोगों को? The ones they used to sit with you. एक समय आपके संग बैठा करते थे, Now you cannot talk to them. अब आप उनसे बात भी नहीं कर They सकते, will not listen to correction. और वे सुधार को नहीं सुनेंगे। Now God spoke to me परमेश्वर ने कहा and said, son, कहा बेटे, when I give you people, जब मैंने तुम्हें लोग दिया they want to talk to you. और वो तुमसे बातें करना चाहते They हैं, want guidance. और वे मार्गदर्शन They चाहिए, want somebody to share their problems. और वे चाहता है कि कोई उनकी समस्या को बांटे। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Yes or no? So you have to raise up partners. तो जैसे आपको भी अपने साथियों को नियुक्त करना है। Peter signaled to his partners. और पतरस ने अपने जो साथी थे उन्हें इशारा किया। He had partners in ministry सेवकाई में जैसे साथी थे who could handle the fish. जो मछलियों को संभाल सकें, Fish is people. और मछली जो कि है लोग, And that's what I have done. और यही तो भाई ने I किया। have raised up these people. इन लोगों को भाई ने नियुक्त किया है, I trained them personally. और व्यक्तिगत रीति से भाई ने प्रशिक्षण देते हैं। Come on, hallelujah. कहें हालेलुया। Now you can come after the service and meet them. और सभा के बाद आप इनसे आकर मिल सकते हैं। Elvis, Dolly, Merlin, smile Merlin, okay. Meenal, okay. Okay. These are the people. और ये लोग You हैं, can come and meet them after the service. और सभा के बाद आकर आप इनसे मिल सकते You हैं। have any problem? यदि आपकी कोई समस्या They है, will guide you. ये आपकी अगुवाई They करेंगे, will talk to you. ये आपसे बात करेंगे, How to read the Bible. कैसे बाइबल पढ़ना है, How to study. कैसे वचन का How अध्ययन to करना pray. है, कैसे प्रार्थना करनी Please है। pray for me. कृपया मेरे लिए प्रार्थना करो, They will pray for you. और ये आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is how Peter handled his success. और इसी प्रकार से पतरस ने अपनी सफलता को संभाला। Come on, everyone say Peter handled his success. सभी लोग कहें पतरस ने, Not only did Peter go from failure to success, और केवल पतरस ही असफलता से सफलता की ओर नहीं गया, he went from success to success. और वो सफलता से सफलता में चला गया। Can we give the Lord a big clap offering? Thank you very much.